Hello everyone, my name is Prachi and I am from BSc Chemistry Honors final year. Today I am making a presentation on metal ligand bonding in transition metal complexes. In this video, I will tell you about VBT, CFT, crystal field splitting theory, उसके जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं वो सब, and splitting of d orbitals in octahedral, tetrahedral and square planar complexes and many more things. Let's start. Valence bond theory. This theory was developed by Linus Pauling. According to this theory, the bonding in metal complexes arises when a filled ligand orbital containing a pair of electrons overlaps with a vacant hybrid orbital on the metal atom. इस थ्योरी में बताया कि जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो कैसे बनते हैं। जब कोई लिगेंड है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो मेटल के जो एम्प्टी वैकेंट डी ऑर्बिटल हैं उनके साथ ओवरलैप करें। VBT assumes the bonding between the metal atom and the ligands to be purely covalent, और जो मेटल और लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो प्योरली कोवेलेंट होगा। Basis of valence bond theory. The central metal atom in the complex makes available a number of empty orbitals for the formation of coordinate bonds with suitable ligands. जो central metal atom होता है वो complexes को empty d orbitals provide करता है ताकि coordinate bond बन सके. The appropriate atomic orbitals of the metal hybridize to give a set of new orbitals of equivalent energy called hybrid orbitals. Each ligand has at least one orbital containing a lone pair of electron. हर लिगेंड के पास एक ऐसा ऑर्बिटल होता है जिसमें लोन पेयर होते हैं। द एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन ओवरलैप विद द फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड टू फॉर्म अ कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड। जो एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल है मेटल आयन के वो फिल्ड ऑर्बिटल जो कि लिगेंड के हैं उनके साथ ओवरलैप करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। एंड द बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। Limitations of valence bond theory. It provides only qualitative explanation for complexes. It does not explain the variation of magnetic moment with temperature. It does not take into account the splitting of d energy levels. It does not predict the relative stabilities of different structures. Now, crystal field theory. The CFT theory was developed by H. Bethe and V. Black. This theory considers the bond between metal ion and the ligand as purely electrostatic. इस थ्योरी में बताया गया कि जो बॉन्ड मेटल आयन और लिगेंड के बीच में बनता है वो होता है प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेसिस ऑफ CFT. The transition metal ion is surrounded by the ligand with lone pair of electrons. जो मेटल आयन है वो लिगेंड्स के उससे सराउंडेड होता है। ऑल टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर रिगार्डेड एज पॉइंट चार्ज, और लिगेंड्स को हम पॉइंट चार्जेस कंसीडर किया जाता है इसमें। द इंट्रैक्शंस बिटवीन मेटल आयन एंड द नेगेटिव एंड ऑफ एन आयन इज़ प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जो इंट्रैक्शंस होंगी वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होंगी। द लिगेंड्स सराउंडिंग द मेटल आयन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड विच इन्फ्लुएंस द एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। जो लिगेंड्स मेटल आयन को चारों तरफ से सराउंड किए हुए हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं जिससे d ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ती है। नाउ शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स. ऑल d ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी on a bare metal ion. However, some d orbitals have different energies from the others in a metal complex. This is called d orbital splitting. Consider the 5d orbitals in an XYZ coordinate system. We will not try to give perspective drawings, rather we will rotate the coordinate system so that it is easy to draw the orbitals. इसमें shapes दिखाई गई हैं। पहला dxy है, फिर dyz, then dxz, फिर dx स्केयर माइनस वाई स्केयर एंड देन dz स्केयर। और जो ये ब्लैक और वाइट लोब्स दिखा रखे हैं ये अल्टरनेटिव साइंस हैं वेव फंक्शन के। एज यू कैन सी दीज आर द शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स। फर्स्ट इज द शेप ऑफ dz स्केयर, देन dx स्केयर माइनस वाई स्केयर, और नीचे जो तीन हैं ये एक जैसी शेप्स ही होती हैं dxy, dyz और dzx की।
The odd-shaped dz square orbital results because there are 6 solutions to the Schrödinger wave equation for the angular momentum quantum number I, but only 5 solutions are independent. The combination of two orbitals produces the unique dz square orbitals. जब दो ऑर्बिटल्स को कंबाइन करते हैं तब डी जेड स्केयर बनता है। इसमें देख सकते हैं डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और डी वाई स्केयर माइनस जेड स्केयर से डी जेड स्केयर बना है। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। Coulomb's law. Energy of interactions between two charges q1 q2 is proportional to the product of charges divided by the distance between them. जो एनर्जी होती है वो q1 q2 बाई r के इक्वल होती है और ये Coulomb's law बताता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स होते हैं वो मेटल को कैसे अप्रोच करते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे डी ऑर्बिटल्स में वो नेगेटिव चार्ज जो कि लिगेंड्स का उससे रिपेल होंगे और उनकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज़ आ जाएगा। जो डिग्री ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एक्सपीरियंस डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ द डी ऑर्बिटल्स और उनकी ओरिएंटेशन कैसे उस पर डिपेंड करेगी। डी ऑर्बिटल्स विद लोब्स डायरेक्टेड एट द लिगेंड्स एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन, और जो लोब्स हैं जो डी ऑर्बिटल्स जो लिगेंड्स की तरफ ज़्यादा डायरेक्टेड हैं वो ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे। Splitting of d orbitals in octahedral complexes. Now dxz and dyz behave the same as dxy in an octahedral field, and dz square behaves the same as dx square minus y square. This means that the d orbitals divides into two groups, one lower energy than the other, as shown in the following diagram. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि पहले 5 ऑर्बिटल्स जो कि बिल्कुल सेम एनर्जी के थे बाद में वो स्प्लिट हो गए, और जो डी जेड स्केयर और एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है उनकी एनर्जी सेम होगी और बाकी के तीनों की एनर्जी सेम होगी, और वे जो तीन हैं वो उनकी एनर्जी डी एक्स जेड स्केयर और डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर से कम होगी, और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो होता है डेल्टा ओ, मतलब कि स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, द ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। The dxy, xz, dyz square orbitals are collectively called the T2g orbitals. जो ये तीन ऑर्बिटल हैं इनको हम T2g ऑर्बिटल्स कहते हैं, और जो dz स्केयर और dx स्केयर माइनस वाई स्केयर ऑर्बिटल है उसको Eg. The octahedral splitting energy is the energy difference between the T2g and Eg orbital. और T2g और Eg ऑर्बिटल के बीच का जो डिफरेंस है उसको ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। In an octahedral field, the T2g orbitals are stabilized by 2/5 delta naught and the Eg orbitals are destabilized by 3/5 delta naught. High spin complexes. Consequences of d orbital splitting magnetism. Let's consider the complex. एक complex लगा लो है हमारे पास FeH2O6 Cl3 और एक है K3FeCN6. The free Fe3 positive ion is a D5 ion. Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसमें वो होगी 3 पॉजिटिव, जिसका मतलब उसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी D5. द टू कॉम्प्लेक्सेस आर 6 ऑर्डिनेट एंड ऑक्टाहेड्रल. इनके पास 6 कोऑर्डिनेट हैं तो इनकी शेप ऑक्टाहेड्रल होगी. फर्स्ट लेट्स लुक एट द डी ऑर्बिटल डायग्राम. अब हम इसका डायग्राम देखते हैं. जो फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वे T2g ऑर्बिटल में जाएंगे और अनपेयर्ड रहेंगे. जो 4th और 5th इलेक्ट्रॉन है या तो वो पेयर अप हो सकते थे या तो T2g ऑर्बिटल में ही रह जाते या फिर वो हायर Eg ऑर्बिटल में चले जाते. बट इस केस में जो स्प्लिटिंग एनर्जी है जो डेल्टा O है वो पेयरिंग एनर्जी से काफ़ी कम है, तो इसलिए वे ऊपर चले जाएंगे Eg ऑर्बिटल में. नाउ लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. नाउ लेट्स कंसीडर द FeCN6 3 नेगेटिव आयन. इसमें भी हमारे पास Fe की 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और 5d ऑर्बिटल्स होंगे. This happens because the octahedral splitting energy is much greater in the hexocyanoferrate ion than it is in the hexoaquarium ion. That is, the cyanide ligand causes a much greater d orbital splitting than water does. The first 3 electrons go into T2g orbital. इसमें भी पहले 3 इलेक्ट्रॉन पहले T2g ऑर्बिटल में ही जाएंगे. Now, however, the splitting energy is much greater, so it is less energetically costly for electrons to pair up in the T2g orbital than to go into the
ईजी ऑर्बिटल, लेकिन इसमें जो फोर्थ और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है वो ईजी ऑर्बिटल में ना जाके T2G ऑर्बिटल में ही होंगे, क्योंकि इसमें जो डेल्टा O है, जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसमें पेयरिंग एनर्जी कम है, तो वे पेयर अप हो जाएंगे और इससे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ हाई एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। Fe(CN)6 is called a low spin complexes because it has the lowest number of unpaired spins possible for an octahedral complex। Fe(CN)6 एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और FeH2O6 3 पॉजिटिव एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है बिकॉज इट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड स्पिन्स फॉर एन octahedral ion 3 complex। The terms high spin and low spin do not refer to specific numbers of unpaired electrons but rather to different electron configurations in d orbital diagrams that results from the pairing energy being greater than or less than the splitting energy। जो हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो डिपेंड करते हैं पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है या कम है स्प्लिटिंग एनर्जी से। Consequences of d orbital splitting। Color in transition metal complexes is due to an electron being excited from one d orbital to a higher energy d orbital। कलर कैसे आता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके एक एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में चला जाता है। इन द केस ऑफ octahedral complex एन इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड फ्रॉम ए T2G ऑर्बिटल टू एन EG ऑर्बिटल। और octahedral complexes की केस में हम बोलते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल से EG ऑर्बिटल में जाता है तो उसको कलर मिलता है। The energy difference for the first transition series generally falls in the visible region। Absorption of one color in the visible spectrum results in the ion having the complementary color। जिस भी कलर का एब्जॉर्प्शन होगा उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है हमें वो शो होगा। द अमाउंट ऑफ डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन द लिगेंड, thus different ligands have different splitting energies and different color results। जो अमाउंट होता है डी ऑर्बिटल कितनी स्प्लिटिंग होगी वो लिगेंड्स पे डिपेंड करता है, तो हर लिगेंड की अलग अलग स्प्लिटिंग एनर्जी होती है और अलग अलग ही कलर्स हमें रिजल्ट में मिलता है। वेरिएशन ऑफ CFSC इन octahedral विद डिफरेंट लिगेंड्स। जो स्प्लिटिंग एनर्जी octahedral है वो लिगेंड के साथ वेरी करेगी, हाई स्पिन और लो स्पिन। हाई स्पिन में क्या होता है, जो पेयरिंग एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और इसमें स्मॉल डेल्टा O की वैल्यू होती है। एग्जांपल के लिए MnH2O6 3 पॉजिटिव D4 मेटल आयन है, इसमें जो पेयरिंग एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा है, दैट इज़ इट कोस्ट लेस एनर्जी टू गो टू EG दैन टू पेयर। तो इसमें ईजीली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो EG ऑर्बिटल में चले जाएंगे और इसलिए हम इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। लो स्पिन में क्या होगा कि वो पेयर अप हो जाएंगे। एग्जांपल के लिए MnCN6 3 पॉजिटिव वाला हम कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं जिसमें भी D4 मेटल आयन है, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसमें जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो पेयरिंग एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे। CFSC इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। D7 का केस लेते हैं, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होगा, इसमें CFSC हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने T2G में ऑर्बिटल हैं उनको हम -0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में EG में जो ऑर्बिटल्स होंगे उनको हम 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके रिज़ल्ट हमें मिला -0.8 octahedral। Since splitting of octahedral can vary between 100 to 400 kilojoule per mole, a carbon-carbon single bond is 350 kilojoule per mole, so this is significant। If we can determine the value of delta octahedral from spectroscopic measurements, then we can calculate the CFSC exactly for a particular complex। Hence, pairing energy is not taken into account since the number of paired electrons is the same as that in the ground state of the free metal ion। Now, CFSC in low spin complexes। इसमें CFSC लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयर अप होना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो इसमें जो CFSC होगी
वो जो T2G ऑर्बिटल हैं उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने हैं 6 हैं, तो उनको हम -0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस EG में जो ऑर्बिटल है उसको हम 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारी CFSE आ जाएगी। नाउ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, d orbital splitting for tetrahedral complexes. A cube, an octahedron, a tetrahedron are related geometrically. Octahedral coordinate results when ligands are placed in the center of the cube face. Tetrahedral coordination results when ligands are placed in alternate corners of a cube. जो octahedral coordinate हैं वो कैसे बने, जब हम लिगेंड को किसी भी क्यूब के सेंटर पे रख देते हैं, और जो टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेट हैं वो इसलिए बनेंगे जब हम लिगेंड्स को उसके अल्टरनेट कॉर्नर्स पे रख देंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन ए क्यूब, लिगेंड्स आर ऑन द सेंटर ऑफ द क्यूब फेस. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन ए क्यूब, लिगेंड्स आर ऑन द अल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब. Splitting of d orbitals in tetrahedral complexes. The dxy dxz behaves the same way as dyz, and dx square minus y square behaves the same as dz square. The resulting d orbital splitting diagram for the tetrahedral coordination is the inverse of the diagram for octahedral coordination shown below. इसमें जो ऑक्टाहेड्रल का कॉम्प्लेक्स में क्या था, 3 ऑर्बिटल्स नीचे थे, dxy yz और zx, और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर ऊपर थे, बट इसमें अपोजिट होगा. The energy difference between T2 and E orbitals is called tetrahedral splitting energy. इनके जो बीच का डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे tetrahedral splitting energy. Note that the orbitals are labeled T2 and E, not T2G and EG. Refers to a geometry such as octahedral that has a center of symmetry. The tetrahedral geometry has no center of symmetry. इसमें जो E और T2 है उनको हम EG और T2G क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि जो G वर्ड है, जो G लेटर है, वो जियोमेट्री को बताता है, जिससे मतलब ऑक्टाहेड्रल में जियोमेट्री थी तो हम उसमें हम EG और T2G लिख रहे थे, बट इसमें कोई जियोमेट्री नहीं है तो हम इसमें सीधा E और T2 ही लिखेंगे. Crystal field stabilization energy in tetrahedral complexes. The tetrahedral crystal field stabilization energy is calculated the same way as the octahedral crystal field stabilization energy. Tetrahedral में जो CFSE की वैल्यू है वो वैसे ही निकलेगी जैसे octahedral में हम कैलकुलेट करते हैं. The magnitude of tetrahedral splitting energy is only 4/9 of the octahedral splitting energy. जो डेल्टा T है वो 4/9 of डेल्टा O होती है. As a result of relative small size of tetrahedral splitting energy, there are no low spin tetrahedral complex. जो रिलेटिव स्मॉल साइज है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग का, इसकी वजह से टेट्राहेड्रल में कोई भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही बनते हैं. इट इज़ ऑलवेज मोर एनर्जेटिकली फेवरेबल टू पुट एन इलेक्ट्रॉन इनटू ए T2 ऑर्बिटल रेदर देन पेयर इट इन एन E ऑर्बिटल. मतलब इसमें पेयरिंग नहीं करवाते, सीधा इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर वाले ऑर्बिटल में पहुंचा दिया जाता है. लेट्स कैलकुलेट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ए टेट्राहेड्रल कोबाल्ट 2 कॉम्प्लेक्स एंड कोबाल्ट 2 इज अ D7 आयन. द इलेक्ट्रिकल कन्फिगरेशन ऑफ द फ्री आयन एंड द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज शोन बिलो. तो इसमें जो CFSE होगी वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो कि नीचे वाले ऑर्बिटल में हैं उनको हम -3/5 डेल्टा T से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको 2/5 से, और उन दोनों को ऐड कर देंगे जिससे कि -1.2 डेल्टा T इसकी वैल्यू आ गई. अ टेबल शोइंग द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जीज फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद डिफरेंट नंबर ऑफ T इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बिलो. नाउ स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. D orbitals in square planar coordinate. Square planar coordinate can be imagined to result when two ligands on the z-axis of an octahedron are removed from the complex. Square planar जो हम अब उसको हम इस तब इमेजिन कर सकते हैं जब octahedron में जो z एक्सिस पे जो 2
लिगेंड्स हैं उनको हम रिमूव ही कर दें, लीविंग ओनली द लिगेंड्स इन XY प्लेन। सिर्फ XY प्लेन पे जो लिगेंड्स हैं उनको इमेजिन करें। एज द जेड लिगेंड्स मूव अवे, द लिगेंड्स इन द स्केयर प्लेन आर मूव ए लिटिल क्लोजर टू द मेटल। जैसे ही जब हम जेड एक्सिस पर जो लिगेंड्स थे उनको रिमूव करेंगे तो जो लिगेंड्स हैं XY प्लेन में वो स्केयर प्लेनर के ज़्यादा मतलब कि मेटल के काफ़ी क्लोज आ जाएंगे। द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग डायग्राम फॉर स्केयर प्लेनर कोऑर्डिनेट कैन थस बी डिराइव्ड फ्रॉम द ऑक्टाहेड्रॉन डायग्राम। स्प्लिटिंग square planar complex. As ligands move away along the z-axis, d orbital with the z component will fall in energy. ऐसे मतलब जब z orbitals के जो ligands हैं उनको रिमूव ही कर दिया गया है तो उनकी एनर्जी काफ़ी हद तक सबसे कम हो जाएगी। The digit square orbitals falls the most. उनकी एनर्जी सबसे कम होगी as its electrons are concentrated in lobes along the z-axis. जो dxz और dyz ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी भी कम होगी बट उतनी कम नहीं होगी जितनी dz स्क्वायर की होगी। कन्वर्सली द dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dxy ऑर्बिटल्स इंक्रीज इन एनर्जी। और जो दो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। द स्प्लिटिंग डायग्राम फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज मोर कॉम्प्लेक्स देन फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एज शोन बिलो। इसमें जो पीजी ऑर्बिटल्स ऊपर थे, T2G वाले नीचे थे। जो dz स्क्वायर है उसकी एनर्जी सबसे कम हो जाती है, सबसे ऊपर हो जाता है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और नीचे वाले जो तीन ऑर्बिटल्स हैं उसमें dxy की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी और जो dxz yz है उनकी कम हो जाएगी। Crystal field stabilization energy in square planar complex. Square planar coordination is rare except for D8 metal ions. Among the D8 metal ions exhibiting square planar coordinate are nickel, palladium, platinum, rhodium, iridium, copper, silver and gold. Copper 2 and silver 2, both D9 ions, are occasionally found in square planar coordination. All known square planar complexes of D8 ions are diamagnetic because the highest energy orbitals is greatly destabilized and pairing in the dxy orbital is more favorable than placing an unpaired electrons in the dx square minus y square orbitals. जितने भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं D8 आयंस के वो डायमैग्नेटिक होते हैं। The crystal field stabilization energy for a square planar D8 metal complex is readily calculated by the usual method. इसको भी हम उसी मेथड से निकाल लेंगे। जितने नीचे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम -0.51 डेल्टा ओ से मल्टीप्लाई करेंगे। दो इलेक्ट्रॉन्स जो ऊपर हैं उनको हम 0.43 डेल्टा ओ से, और जो दो इलेक्ट्रॉन्स DXY प्लेन में हैं उसको हम +0.23 डेल्टा ओ से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में P। The pairing energy correction is included because a free D8 ion has two unpaired electrons, but a square planar D8 complex has no unpaired electrons. Now, factors affecting magnitude of crystal field splitting. जो फैक्टर्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट करते हैं अब उनके बारे में पढ़ते हैं। नेचर ऑफ द लिगेंड। स्मॉल लिगेंड्स अप्रोच द लिगेंड्स इजीली so they can cause great crystal field splitting. Ligands containing easily polarizable electron pair will be drawn more easily to the metal ion. जितने ज़्यादा ligands छोटे होंगे वो उतनी ज़्यादा उनकी crystal field splitting energy ज़्यादा होगी। Number 2, oxidation state of the metal ion. The metal ion with higher oxidation state cause large crystal field splitting than is done by the ion with lower oxidation state. अगर किसी मेटल की एनर्जी की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो उसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयन से। नंबर 3, टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स. The extent of CFS for similar complexes of metal in the same oxidation state increase by about 30 to 50% on going from first transition series to third transition series. जैसे ही हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से फर्स्ट सीरीज से थर्ड में जाते हैं तो जो CFS की वैल्यू है वो बढ़ जाती है. The increase is almost same as going from second transition series to third.
This may be explained on the basis that 4d orbitals in comparison to 3d orbitals are bigger in size. As a result, 4d orbitals interact strongly with bond. इसका रीज़न ये है कि जो 4d ऑर्बिटल्स हैं वो 3d ऑर्बिटल्स से साइज़ में ज़्यादा होंगे, तो वो लिगेंड्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएंगे, इसलिए जो CFS की वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। Geometry of the complex. Crystal field splitting energy of tetrahedral complexes is nearly half the value for octahedral complex. In other words, the value of CFSE for tetrahedral complex is small as compared to the pairing energy. The tetrahedral complex are therefore mostly high spin complexes. जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है टेट्राहेड्रल की, वो ऑक्टाहेड्रल्स की आधी होती है। हम कह सकते हैं कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो मोस्टली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते। What are the limitations of crystal field theory? It does not take into account the partial covalent character of a metal ligand bond. Number 2, it does not consider multiple bonding between metal ion and ligand. 3, it does not explain the relative strength of the ligands. 4, it does not explain the charge transfer bands. 5, it considers only d orbitals of metal ions. Thank you for watching.